Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss some more concept on normalization. So first of all, we will review the process of normalization up to BCNF with the help of an example. Then we will see multiple value dependency and fourth normalization form. After that, we will discuss properties of decomposition. So here we have an example of a staff property inspection relation. You can see this is an unnormalized table. What we will do, we will apply normalization step to make it normalize. So let's start with first step. From unnormalized form to first normal form, what we will do, we have to make the value of each attribute atomic. You can see कि यहाँ पर जो आई डेट, आई टाइम, कम इन, स्टाफ नंबर, एस नेम और कार रजिस्ट्रेशन एट्रीब्यूट हैं. हर एक एट्रीब्यूट के हर एक रिकॉर्ड में हमारे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं. हमें क्या करना है, इस ग्रुपिंग को ख़त्म करना है एंड मेक इट एटमिक. और इसे हम एटमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर और प्रॉपर्टी एड्रेस जो है हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐड करेंगे. नाउ यू कैन सी our table in first normal form. So after the first normal form, our next step is the identification of functional dependency. We know that कि functional dependency जो है important concept है हमारा normalization में. Except first normal form, जो भी हमारा normalization का process है उसके अंदर हमारी functional dependency use हो रही होती है. So let's find out the functional dependency. You can see property number से हम ident को identify नहीं कर सकते uniquely, and I time no. So here we have property number and property address. We can uniquely identify property address from property number. Similarly, from staff number we can identify S name, and with a combination of property number and ident we can find I time, P address, comments, staff number, S name and car registration. And we can combine staff number, ident and I time to find out other attributes as well. So here we have list of functional dependencies. You can see we have 6 functional dependency. You can drive other dependencies as well. So after the identification of functional dependency, we have to find candidate key. So the candidate key can be property number and ident. See property number और ident के through हम बाकी सारे टेबल के एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस नहीं है, सो प्रॉपर्टी एड्रेस जो है प्रॉपर्टी नंबर से हमें सेपरेटली मिल जाएगा. सो प्रॉपर्टी नंबर और ident कैन बी अ कैंडिडेट की. Here we have car registration, ident और I time जिसके थ्रू हम बाकी सारे टेबल के एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं. Similarly, staff number, ident और I time can be a candidate key. After identification of the candidate key, we have to choose one of them as a primary key. So I'm choosing second as my primary key. So यहाँ पर property number और ident हमारा क्या है, primary key है. So property number and ident are prime attribute because they are making a primary key. Other than prime attributes, जो हमारे attributes हैं उन्हें हम कहते हैं non prime attribute. ठीक है. So सी हमारे जो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं. इफ़ यू सी यहाँ पर अगर आप पहली डिपेंडेंसी को देखें तो प्रॉपर्टी नंबर दैट इज अ सब पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की. तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर जो कि प्राइम एट्रीब्यूट है और सब पार्ट है किसी प्राइमरी की का, वो आइडेंटिफाई कर रहा है किसे, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को. अगर हमारा कोई नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हो रहा है किसी सब पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की के, देन वी कैन से इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी. सिमिलरली अगर हमारा कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी एक कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर हमारा कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करे, देन इट विल कॉज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. सो हियर स्टाफ नंबर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और वो क्या कर रहा है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. नाउ वी विल गो थ्रू दी सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. वी नो दैट हम क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम अपने टेबल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे. और पार्शियल डिपेंडेंसी हम कैसे रिमूव करेंगे, हम टेबल को स्प्लिट कर देंगे इनटू 2 टेबल. सो प्रॉपर्टी नंबर और प्रॉपर्टी एड्रेस का हमने क्या कर दिया, एक अलग टेबल बना दिया है. सिमिलरली बाकी जो हमारे एट्रीब्यूट्स का हमारे हैं वो अलग टेबल बन गया और प्रॉपर्टी नंबर हमारा दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है. सिमिलरली
In third normal form, what we will do, we have to remove the transitive dependency. सो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. हम क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे हमारे टेबल को. हम स्टाफ नंबर और एस नेम का एक अलग से सेपरेट टेबल बना देंगे. सो यू कैन सी वी हैव नाउ 3 टेबल्स. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से हमारे पास एक टेबल बन गया, एक पार्शियल डिपेंडेंसी को हमने रिमूव किया तो हमारा टेबल स्प्लिट हो गया, एंड वी हैव अनदर टेबल. बट again we have some attribute that are redundant. You can see अगर मैं कार रजिस्ट्रेशन के एट्रीब्यूट को अपडेट करूं तो वी हैव टू अपडेट 2 रिकॉर्ड. अगर हमारे पास रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस जो है बहुत लार्ज है और हमारे पास डेटाबेस हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो यहाँ पर अपडेट एनोमलीज आ सकती हैं. सो अप टू नाउ हमारे पास 3 टेबल हैं. प्रॉपर्टी नंबर है, प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. इस रिलेशन में हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर कैंडिडेट की भी है और अ प्राइमरी की भी है. सिमिलरली हमारे पास एक और रिलेशन है स्टाफ नंबर और एस नेम, दैट in which staff number is a primary key and a candidate key as well. In R3, in relation 3, if we see property number or IDate, yes, this is a candidate key. Staff number and IDate, no, it's not a candidate key. Car registration, IDate, item, yes, it is a candidate key. Staff number, IDate and item, yes, it is a candidate key. So if we have a determinant that is not a candidate key, then we have to remove from the table to make it a candidate key. तो आफ्टर थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम देखते हैं अगर हमारे रिलेशन में हमारे पास कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसका डिटर्मिनेंट जो है कैंडिडेट की नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसे सेपरेट टेबल के अंदर हम उसे अलग करते हैं टू मेक इट अ कैंडिडेट की. So this is called the Boycott normal form. We also called it 3.5 normal form, जो कि क्या कहता है कि हमारा जो भी डिटर्मिनेंट है हमारे टेबल में, जो भी हमारे रिलेशन में डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए. और वी हैव सीन के थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये अलो था कि हमारा जो अगर ए हमारा कैंडिडेट की नहीं है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अलाउ थे. बट इन BCNF जो कि हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट वर्जन है 3NF का, उस पर हम देखते हैं कि हमारा एवरी डिटर्मिनेंट जो भी हमारा डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा कैंडिडेट की होना चाहिए. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट और मेक इट अ कैंडिडेट की हम क्या करेंगे, हम उसे एक अलग से टेबल में जो अगर हमारा ऐसा एक डिटर्मिनेंट है जो कि कैंडिडेट की नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका एक अलग टेबल बना देंगे. सो यू कैन सी कि हमारा ये टेबल है तो हम इसमें से हमारा जो एट्रीब्यूट जो हमारा डिटरमिनेंट है जो कि नॉट अ कैंडिडेट की है उसे हमने क्या कर दिया सेपरेट टेबल के अंदर ले आए. देखें स्टाफ नंबर आईडेट एंड कार रजिस्ट्रेशन इसका हमने एक अलग टेबल बना दिया. नाउ यू कैन सी वी हैव स्टाफ नंबर और आईडेट जो है हमारे पास यहाँ पर अब क्या बन गया है, कैंडिडेट की बन गया इस रिलेशन पे. अब हमारे पास 4 रिलेशन बन गए हैं, प्रॉपर्टी नंबर एंड प्रॉपर्टी एड्रेस, देयर इज अनदर रिलेशन स्टाफ नंबर एस नेम, प्रॉपर्टी नंबर आई डेट आई टाइम कॉमन स्टाफ नंबर, इसका एक अलग टेबल बन गया है, एंड आर फॉर स्टाफ नंबर आई डेट एंड कार रजिस्ट्रेशन. यू कैन सी यहाँ पर जो है हमारा टेबल जो है अप टू मार्क जो है नॉर्मलाइज फॉर्म में आ चुके हैं. बट स्टिल we have some other anomalies as well. अक्सर हमारे पास BCNF के बाद भी हमारा जो टेबल है उसके अंदर अपडेट एनोमलीज आ रही होती हैं. ठीक है, तो अगर बहुत रियर केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास अपडेट एनोमलीज आ रही होती है, डेटा रिटेंडेड हो रहा होता है, सो वी विल सी सम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दैट कैन बी रिमूव इनटू अनदर नॉर्मल फॉर्म दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो हियर व्हाट विल लेट्स सम अप कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना जो भी हमारा अननॉर्मलाइज फॉर्म टेबल होता है उसे क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें मिसिंग वैल्यूज और जो भी हमारी वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज हैं अगर हमारे एक एट्रीब्यूट के अंदर तो हम क्या करते हैं उसे एटॉमिक बनाते हैं. देन वी विल रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज एंड देन वी विल रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. आफ्टर दैट वी विल मेक श्योर दैट ईच डिटरमिनेंट मस्ट बी अ कैंडिडेट की, तो वो हमारा क्या हो जाता है, BCNF हो जाता है. आफ्टर BCNF if we still have some redundant attribute, then we will apply fourth normalization form. So up to now we will cover BCNF. Now we will see multi-value dependency in our lecture next video.
Thank you.